are going more stress on what is the outcome based education. Who are saying, who are doing the outcome based education, but they give more stress on outcome based education when they come for the autonomous college, because the outcome philosophy of outcome based education only implemented in the university, or either in the university or in the autonomous college. For the affiliated college, it is not possible to implement the full philosophy of outcome based education. So that is I am going to cover. Then about Bloom's taxonomy, then course outcome, case study on the course outcome, how to develop the course outcome, because there is a major difficulty when we check the files and we interact with the faculty, we find out that more than 75% outcome which you mentioned in your existing course file book are wrong. They are, you mentioned is the not the course outcome, even it is not the unit outcome. What is the thing is expected under the course outcome, it is not mentioned. It is the thing what you mention, like the student are learning the things, student understand the thing, and it is not complete the sentence. What is the outcome after learning that? That is a missing. If you go and check your course outcome, आपकी कोर्स फाइल खोलिए और पढ़िए, तो वहां पर आपने सिर्फ इतना लिख कर रखा है, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द थिंग, स्टूडेंट विल लर्न द थिंग, स्टूडेंट विल डिजाइन द थिंग, बट फॉर व्हाट, हाउ यू मेजर ये उसका आउटकम निकला या नहीं, स्टूडेंट डिजाइन के क्या डिजाइन किया, because each and every level design is there, each and every database management system is start from the degree level to MTech level or the PhD level, all are learning the database management system, but for each level the outcome are expecting are different. It is not the same thing you are expecting from the same subject, the different outcome you are expecting. So that is the case study I am going to take, and I am going to mention what are the things are required to define the outcome, course outcome. And as I am again repeating, as an autonomous college, you are having the freedom to define the course, define the curriculum, and you are having the freedom to write as many number time it is possible. You can change the outcome. What is the mention in the course book? It is not fixed. इसमें कहीं कोई मेंशन नहीं कि आपने एक बार लिख दिया कोर्स बुक में आप बदल नहीं सकते हैं. आप अपने जब आपको समझ में आया तब उसको बदलिए आपके कोर्स बुक में, भले वहां लिखा रहने दीजिए, पर आपके कोर्स फाइल में आपके जो सब्जेक्ट फर्ज है उसमें लिखिए कि वहां लिखा था इट इज नॉट प्रॉपर बट आई हैव डिफाइंड दिस थिंग एंड आई हैव सीन सच थिंग इन द एफिलिएटेड कॉलेज हु आर गोइंग फॉर द एक्रेडिटेशन. द यूनिवर्सिटी इज गिवन बट दे डिफाइन देयर ओन CO. It is nobody restrict you to define your own CO, because you have to justify the thing. Whatever the thing you return, आपको बताते आना चाहिए. As sir is told, NBA and NAC do not say that these are the thing only you mention. You have to justify the thing. आपको justify करना है कि मैंने ये sentence क्यों लिखा है. उसके लिए आपको कुछ supporting document बताना होगा. उसको बताना होगा कि I had written this thing because I had taken this of the problem. I had in my question paper these are the things I taken. I had taken this of the assignment. That's why this sentence justified. Okay. So these are the things I had taught to student. So that is the things are required in the course outcome. And I am not going to cover the 5, 6 and 6 I am going to cover it with the 4 because it is required. It is come hand to hand. But I am not going to cover the CO attainment and PO attainment. Again required that 1.5 hours. So only the 1.5 hour is given. So I am trying to finish my presentation in the given time. And these are the some acknowledgement before starting, because it is necessary that you should acknowledge all the things from where you are teaching the things, and it is also comes under the ethics. Whatever the things you are using and you are teaching, you acknowledge the things. So it comes under the ethics and the copyright purpose also. So I had covered the things, major things are covered from the all the things from the NBA. That is NBA guideline how to prepare the ACR. ACR का long form पता है आपको? What is the long form of ACR? Self assessment. And was it SSR? Self study report. तो in both the case they mention the self. आपने जो बोला self आपने खुद बताया है, तो वही चीज है. वो नहीं बोल रहे कि आप ये बताइए, वो नहीं बोल रहे कि मुझे 50 प्रोग्राम बताने हैं आपको, वो बोल रहे कि 5 बताइए, बस सही बताइए.
दे डू नॉट इंस्ट्रक्ट कि आपको 50 ही प्रोग्राम बताना है या आपको 10 प्रोग्राम ही बताना है, आपको इतने ही अटेंडमेंट बताना है। जितना भी अटेंडमेंट आपने बताया, आपने सेल्फ बताया है, और उसको वो आकर से वैलिडेट करते हैं जो बोला आपने सही बताया है कि नहीं। तो देन आई हैड यूज्ड द, बिकॉज एज ए मार्गदर्शक, so they give the training how to go and work with the different institute. So there are some workshops they given conducted by the NBA, and the last, this is the document which I am going to share, and I already shared with the HOD, but if you require, it is a very good document. That is examination reformation policy, and if you refer this examination reformation policy which is given by the AICT, it is available on the net also. You freely download, it is the address is given, and you refer. If you are referring that examination reform policy, all the difficulty of how to map, when to give the CO to PO 1, 2, 3, they given very much. There is a performance indicator they given. If there is a PO is there, PO 1 is there. Out of PO 1, what are the keywords are there? They differentiate the keyword, and for each keyword, what are the things required to ask in your subject, in your program. If you define all the things in the beginning, and if you are asking the question accordingly, it is very easy to justify to the committee that why I have given the 3, why I have given the 2 and 1. So for that examination reform, I am going to take that thing. I am going to show, but the full document I am going to give. Here I am going to take only for the one department, one example I am going to take. But for all the department, they have given all the major department program NBA in that book examination reform policy. They have given the examples. For one, if it is PO1, so what type of question they are expecting? If it is PO2, what type of question should be there in your question paper? If it is PO3, what type of question should be there? एक ब्रांच का उन्होंने बहुत अच्छे से करके दिया हुआ है. You can follow that thing. Okay. So these are the IU document through which I am covering these things. So outcome based education. So this is only the slide. If I am trying to explain, I can talk with the 1 hour also. But in the beginning, only if you understand this thing, this is the outcome based education. What are the things are there? And we told that, sir is also told, what the teacher teach is not important, but what the student learn. Mean what the skill set you are expecting from the student to learn. What the student want learn, mean the individual student are want to learn the different things. यदि आपके पास में 2000 लड़के 2500 है, 2500 लड़के अपना अपना चीज पढ़ना चाहेंगे, it is not possible. 2500 individual student what they want to learn. So but what the skill set the student should have after completing the 4-year degree program, that is defined by the NBA. As per the Washington Accord, as sir told, there is the one Washington Accord, and the major countries are the signatory of the Washington Accord. In that they come to the one common conclusion that the student should have the 12 graduate attributes. That is we call it the PO. So that is the PO. If you are, that is the skill set. What is the, if you are attending the PO means you are attending the, you are developing the skill set in the student. Students are getting that skill set. They are equipped with that skill set. So that is the 12 program graduate attributes. I think each and every if you are already know the MBA process, so you are knowing who are new. Whether you are knowing the PO, आपको PO पता है? What is the long form PO? Program. कितने लोगों को पता है what are the 12 graduate attributes? थोड़ा हम इसको इंटरेक्टिव बताते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा कि आपको अवेयरनेस पता चलेगा. So what do you want the student to be able to do skill set? ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन का सबसे बड़ा जिस्ट है कि स्टूडेंट में स्किल सेट डेवलप करना, या स्टूडेंट में स्किल सेट है या नहीं मेजर करना, और यदि नहीं हो रहा है डेवलप तो उसका क्या कारण है. What is the problem? Why that skill set is not developed? So that I am going to cover. That is the PO. तो प्रोग्राम 12 प्रोग्राम आउटकम में 4 जो शुरू के 5 है, PO1, PO2, PO3, we call it the core competency, by which you develop the core competency in the student. यदि आपका मैकेनिकल का स्टूडेंट तो मैकेनिकल की कॉम्पिटेंसी होंगी, कंप्यूटर का तो कंप्यूटर की होंगी,
आईटी का हुआ तो आईटी ब्रांच की AIDST according to your program the 4 companies developed by the 5 PO and rest of the things are common for all the branches. Okay, so these are the skill set. If you it is not required to bother to the faculty that what skill set I should develop to the students, because it is already defined that labor is overcome by the AICTE. Initially in the 5 year back it is required to define the PO also. शायद सबको पता होगा PO भी डिफाइन करना पड़ता था, मगर अभी PO दे दिया है एज पर द वॉशिंगटन अकॉर्ड उन्होंने डिफाइन कर दिया. एंड इफ यू आर अटेंडिंग द PO स्किल सेट, उसका इफेक्ट क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज विद दैट PO. If you attended that PO with the as per the Washington Accord, it means that you ensure that the global mobility in the students, because these are the things common for all the country. If a student is learning the engineering in the Australia or the America or Germany, all are the signatory of the Washington Accord. If the students are having the 12 graduate attributes, it means that all are understanding that they are having that much skill set. So they readily accepted that student without taking any extra examination or extra qualification, and that ensures the skill set. And but I had mentioned about the PSO. Sir is also told, but it is only the 12. But you are having a special thing. Your college having the extra lab. Your college having the FMS lab. Your college having the some E-Yantra lab. Which other college is not having. So what is the outcome of that lab? For that you have to define 2-3 PSO. That is the program specific outcome. On the basis of the your strength. आपके पास कोई फैकल्टी ऐसा होगा उसका एक नॉलेज में बहुत मास्टरी होगी. दैट फैकल्टी उस टाइप का फैकल्टी दूसरे कॉलेज में नहीं है. वो फैकल्टी ने आपके बच्चों को एक अलग टाइप से उसने डेवलप करा. हो सकता है कि आपके कॉलेज में बहुत सारे लड़के स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, दूसरे कॉलेज में नहीं चालू कर रहे हैं. तो व्हाई दे आर स्टार्टिंग द स्टार्टअप? बिकॉज ऑफ द सम इनपुट यू आर गिविंग, सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू आर टेकिंग एंड सम एक्स्ट्रा इनपुट्स आर गिविंग. So that should comes under the PSO, program specific outcome. And if the students are attending that thing, then we can say that they are able to fulfill our PEO and our vision and mission of the college. Because all other things should be focused on the vision, mission, then PEO, then PO, PSO, then CO. And to fulfill CO, from where the CO is going to come? You require the curriculum. From the curriculum, the CO is going to develop. So that is the flow which is given by the MBA. Now, these are you are knowing that PO is required, 12 PO is there. All are knowing, all college people are knowing. But why they are not getting the MBA? Why they are not getting the accreditation? All these things. So how can best the help the student achieve? So here in the outcome-based education, the role of the teacher is to mentor it, guide it, support it, facilitate it. Not only teach it, you have to work as a guide, facilitator, supporter, achiever. Because if the person is standing on the square, if we do not know where to go, यदि एक स्क्वायर पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उसको पता नहीं कहाँ जाना है, is anybody going to help that person? यदि कोई स्क्वायर पर एक आदमी खड़ा है उसको ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, उसकी कोई मदद कर सकता है क्या? करेगा क्या? कोई नहीं करेगा. यदि उसको ये नहीं पता मुझे व्हाट इज माय डेस्टिनेशन, तो कोई उसको गाइड ही नहीं कर सकता कि ये रास्ता सही है. नोबडी एबल टू हेल्प हिम. पर यहाँ पर आपको पता है कि कहाँ डेस्टिनेशन है उसकी. इंजीनियरिंग में लड़का ले लिया है तो उसको बता दिया गया है कि दिस 12 एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट शुड हैव. हमको सबने एनबीए ने बता दिया है, एआईसीटी ने बता दिया कि आपको लड़कों में 12 क्वालिटी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट डेवलप करना है. हमको पता है, यदि लड़के को नहीं भी पता तो आपको पता है. तो अकॉर्डिंग टू लड़का 12वीं से आएगा तो उसको क्या पता है कि मेरे को क्या है, मेरे 12 ग्रेजुएट. बट एनबीए ने बता दिया कि आपको 12 चीज पर फोकस करना है. इट इज योर ड्यूटी फ्रॉम योर 40 नंबर ऑफ कोर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर यू डेवलप दिस 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स. आपको टारगेट दे दिया गया है, यू आर हैविंग द टारगेट. सो टारगेट है तो आपका काम क्या है? यू प्रोवाइड दैट फैसिलिटी. उसके लिए आपको क्या करना है? करिकुलम के थ्रू होगा. आपको करिकुलम उस हिसाब से डिजाइन करना है. एज आई एम repeatedly saying that for the autonomous college you are designing the curriculum.
आप लोग बोर्ड ऑफ स्टडी के यहाँ पर चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, और आप करिकुलम डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन नॉट गिव द एक्सक्यूज कि यूनिवर्सिटी ने बता के दिया था, ये नहीं। आपने बोला कि नाउ द यू हैव डिसाइडेड इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, द स्टेक होल्डर की क्या नीड है। You had collected a thing that Python programming required, or some Android programming, or some Angular, Java, or so many things. What you are according to your branch, you are identify the needs of the stakeholders. You are come to know that. You also mentioned in your program specific outcome. These are the things should be my students should able to do that the programming and all this thing. If your curriculum do not having the course on that, how it is going to achieve? For that you require to put the course. यदि आपने बोला कि जावा का रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, तो जावा का कोर्स पढ़ाना होगा। यदि जावा में कुछ एडवांस जावा आया तो वो पढ़ाना होगा। यदि आपका करिकुलम आपने मॉडिफाई नहीं किया, हाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द स्टेक होल्डर? ठीक है ना। और दैट द करिकुलम इज रिक्वायर्ड विद द कोर्स आउटकम, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट, एंड हाउ विल यू नो। अब आपने यदि करिकुलम दे दिया तो आपने अटेंड हुआ या नहीं, उसके लिए इवोल्यूशन प्रोसेस है। इवोल्यूशन करने के बाद में आपको इवोल्यूशन के लिए अटेनमेंट निकाला, और अटेनमेंट निकालने के बाद में पता चला कि अटेनमेंट नहीं हो रहा पूरे क्लास से, आपने जो टारगेट रखा था अटेनमेंट नहीं हो रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि लड़के अच्छे नहीं थे। देयर में भी सम रीजन। आप जो बोलेंगे कि हमने अटेनमेंट है, लड़कों ने अटेंड ही नहीं किया, आपने पूछा नहीं प्रॉपरली, आपने पढ़ाया नहीं, अटेंड नहीं हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, क्लोज लूप बनाना होगा। कोई भी सिस्टम को क्लोज लूप हुए बिना सिस्टम फुल लूप नहीं होंगी। तो आपको देखना होगा कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर है या नहीं, आपका करिकुलम प्रॉपर है या नहीं, आपको इंप्रूव करना है क्या, आपको सीओ जो आपने डिफाइन किया प्रॉपर है या नहीं, ये सब ये डिफाइन करने में क्लोज लूप करना। दिस इज इफ यू आर गोइंग टू डू मींस यू आर गोइंग टू डू द आउटकम बेस्ड एजुकेशन। यदि आपने ये चार चीजें जो लिखी है यहाँ पर, स्किल सेट एज ए वर्क एज ए गाइड, इवोल्यूशन प्रोसेस आपका प्रॉपरली है, एंड आपने क्लोज लूप बनाकर चेक किया या नहीं, देन ओनली यू गेट द आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो मैं इसका एक पॉइंट हम आगे जाएंगे। सो दिस इज द फ्लोचार्ट व्हिच आई टोल्ड यू, which is given by the NBA. So I am not going to take this thing in detail, because as I told you, for all your program education objective, your CO, PO and your curriculum, it should focus on your mission and vision of the school. It should, because the vision should be focused, and from the vision the program education objective is there. As I told you, program education objective, how it is going to attain? By the fulfilling your PO and PSO. Then for fulfilling the PO, you requiring the, how the PO is fulfilled? You require the CO, that is the course outcome. Course outcome attain होगा तो program outcome attain होगा। यदि course outcome आपने कैसे इसका रिलेशन कैसा, मैं यहाँ बता देता हूँ ब्रीफ में। CO आपने लिखा कि कोर्स आउटकम, मैंने बोला CO का बताया कि मैंने पहला CO को व्हाट बताया आपने ऑलरेडी, आप लोगों ने एक्सरसाइज कर चुका है, मैं डायरेक्ट इसको आता हूं, मैं अभी कवर करने वाला हूं। CO आपने बताया CO1 मेरा PO1 से मैप किया 3 से, तो पहला PO से मैप कर दिया आपने 3 से लिख दिया। मतलब यदि लड़के ने CO1 पर यदि आपने क्वेश्चन पूछा, जो आपने CO1 पर लिखा, यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट के 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा, 10 में से 10 मार्क उसको आ गए, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने 3 से मैप किया, मेरा PO1 अटेंड हो गया। ऐसी है ना, कोई एनी कंफ्यूजन इज दैट? पर यदि आपने CO में बोला डिस्कस द समथिंग, राइट द डिफरेंस बिटवीन द थिंग और डिफाइन द थिंग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है, और आपने वहां पर लिखा कि ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, उसने ये जो पूछा वो लिख दिया। तो PO1 क्या बोलता है? What is PO1 is told? PO1 का क्या होता है? You should apply the knowledge of mathematics, okay, fundamental of engineering and program specific knowledge. 4 कीवर्ड उसके अंदर में, मैथमेटिक्स अलग है, बेसिक साइंस अलग है, प्रोग्राम स्पेसिफिक नॉलेज है, फंडामेंटल में इंजीनियरिंग। अब डिफाइन द प्रॉब्लम तो कोई भी ब्रांच का कर देगा, लड़का पढ़ेगा लिख देगा। प्रोग्राम स्पेसिफिक नॉलेज कहाँ है उसके पास? मतलब उसको लड़के को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर ब्रांच का ही नॉलेज यदि लड़का है, उसको उसके वो अप्लाई कर वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देन इट इज द प्रोग्राम इज अटेंड। तो आपको ये रिलेशन है CO का PO अटेंड हुआ या नहीं चेक करने का। तो आपको CO का स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको PO अटेंड हो रहा है या नहीं, आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
वो किसी भी एक दूसरा है कि आप प्रोग्राम का सीओ, जब मैं भी सीओ में डिटेल में जब जाऊंगा मैं बताऊंगा, सीओ लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखने का है कि आपको आपका जो कोर्स दे दिया है टोटल यूनिट 1 2 3 4, उसमें से पढ़ने के बाद आप सोचिए कि मेरे लड़का क्या 4 अच्छी चीजें कर सकता है, उसमें पूरा पढ़ने के बाद 5 क्या काम करेगा, व्हाट आर द आउटकम यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर फुल कोर्स, नॉट फ्रॉम दैट यूनिट। आपका पूरा बनाने के बाद में राइट डाउन CO1 CO2 CO3 CO4 कि आप ये 5 चीज करने के बाद में यदि आपने पढ़ा दिया तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है या डिजाइनिंग कर सकता है, किसी उसको नॉलेज आ गया है। डेटाबेस पढ़ने के बाद में आदमी सॉफ्टवेयर भी डेवलप करता है, सिर्फ नहीं तो पता चला कि सिर्फ छोटी सी क्यूरी लिखेगा या फिर बड़ी क्यूरी लिख सकता है, किस लेवल पर जा सकता है। आपका सिलेबस में आपका कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि आपने जो सिलेबस को बताया है आप उस लेवल का सीओ लिखे, वहां पर उस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, तब आप उसके अंदर में पहले जो कीवर्ड आ रहे हैं तो फोकस करते हैं, देन ओनली इट इज गोइंग टू अटेन। तो दीस आर ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तो यदि किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए रोक कर, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर अपन इन हाउस है। तो आई टोल्ड यू these are the 12 graduate attributes you have to complete when you fulfill your CO and PO. So this is the thing I already covered. So this is the main word which is the outcome based education. It is not what teacher teach, it is what learner learn. This is the philosophy of the outcome based education. Role of teacher is to guide and mentor student, and it should be learning centered. As I already told you, the role of teacher is the guide and mentor students, learning centric. आप लोग लिखते जाइए क्योंकि आपको बाद में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है, तो इसके अंदर कुछ वर्ड आपको आ सकते हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन, तो as I again told, OB is the educational process that focus on what student can do after completing the course, what the student can do. आपको बताने की जरूरत नहीं लड़का क्या कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, क्वालिटी दे शुड डेवलप आफ्टर दे आर टॉट। दिस इज द मेन फिलॉसफी ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। ये चीज पूछा जाता है जब विजिट होती है तब पूछते हैं व्हाट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन, एंड मेनी पीपल आर फेल टू मेंशन व्हाट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन। OB इन्वॉल्व द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द करिकुलम, रीस्ट्रक्चरिंग लिखा है, आपका जो करिकुलम है उसको रीस्ट्रक्चर करते रहिए। करिकुलम, असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिस इन द एजुकेशन, आप जो ढंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको चेंज करिए, उसका लेवल बदलिए, उसके क्वेश्चन पेपर बदलिए। डू नॉट स्टक विद द ओल्ड मेथड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। ये इट डिपेंड ऑन यू पीपल ओनली। असेसमेंट प्रोसेस यू, करिकुलम हमारे हाथ में, ऑटोनॉमी कॉलेज में हर बार हम लोग बदलते रहते, करिकुलम चेंज करिए। And reporting practice to reflect the achievement of high order learning. High order learning means there are two order, high order learning and low order learning क्या होता है? That we come to know with the Bloom taxonomy. Low order learning means that is the remembering, understanding, okay, and apply. And high order learning is the 5U6, that is the create, analyze. Okay, तो high order learning को जाइए, जब तक high order नहीं आएगा तब तक क्या आपका कोर्स आउटकम और PO अटेंड नहीं होगा। एंड लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टरी रादर देन द एक्यूमुलेशन ऑफ द कोर्स क्रेडिट। सिर्फ कोर्स क्रेडिट खत्म कर दिया, नॉलेज कुछ भी नहीं आया। ओके, आपको कोर्स क्रेडिट जमा नहीं करवाना है लड़कों को, उनको नॉलेज देना है। ओके, एंड टू चेक द मास्टरी यू टू टेस्ट देम रेगुलरली। सिस्टमैटिकली डिजाइन एंड डेवलप आउटकम बेस्ड करिकुलम, ये कैसे डेवलप करना है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। Develop appropriate ICT based pedagogic framework tool to train faculty member to design, develop, monitor, review curricula based on the industry expert feedback. ये सेकंड पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले ही पॉइंट नैक में पहला पॉइंट है। हाउ यू डेवलप द करिकुलम, हाउ यू टेकन द फीडबैक, आपने पहले ही पॉइंट है उसका फीडबैक। तो उसके अंदर लिखा कि ग्लोबल, लोकल एंड रीजनल नीड के हिसाब से आपने करिकुलम डेवलप किया क्या, पहला ही पॉइंट है क्राइटेरिया 1 का। और उसके लिए वहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट फीडबैक, आपको इंडस्ट्री वाले से पूछना है जाकर व्हाट द थिंग्स आर नीडेड, व्हाट इज द स्किल सेट यू आर नीडेड फ्रॉम द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फ्रॉम द कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फ्रॉम द IT स्टूडेंट, फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड व्हाट आई कम टू नो दैट हियर इन द Pune itself, the VIT college is there, they are developing the curriculum on the basis of industry required only.
उनके पास जितने भी करिकुलम है वो इंडस्ट्री पीपल को बुलाते हैं, व्हाट आर द थिंग्स आर नीडेड, और उतना ही पढ़ाते हैं बच्चों को. सो द स्टूडेंट्स आर रेडीली एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर बोलते हैं ना कि आपका एक्सेप्टेंस ऑफ द लर्निंग स्टूडेंट्स आर वेरी लो. इंजीनियर फीडबैक रहता है एम्प्लॉयर का कि आपके बच्चों में क्या है, टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, उनको बहुत पता ही नहीं क्या करना इंडस्ट्री में. दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, एंड नाउ एट इंडस्ट्री आर नॉट रेडी टू एक्सपेंड द 6 months ऑन योर ट्रेनिंग. दे वांट फ्रॉम द day one the students should go on the platform and they start working. That is the need of the industry. यहाँ पंकज सर बैठे शायद बेटर बताएंगे इस टाइप की नीड है ये नहीं. ओके, वो आप पहले कहता था कि आपको पैसा भी पड़ता है इंजीनियरिंग में, वो उनका ट्रेनिंग सेशन रहता था, ट्रेनिंग क्लास, तो 6 महीना ट्रेनिंग देते थे एंड बाद में वो आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ते थे. बट नाउ दे फ्रॉम day one वो उनको एक्सपेक्टेशन है कि बिकॉज स्टूडेंट्स आर कमिंग इन दैट नॉलेज. तो हमें इंडस्ट्री का एक्सपर्ट का फीडबैक लेकर डेवलप करना है, उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल टू डेवलप द करिकुलम. इंक्लूड रेफरेंसेस टू एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल. कई बार टीचर क्या करता है, जो पढ़ाता है ना वो किताब का नाम नहीं देता, बाकी सब किताब का नाम देता है जिसमें से पढ़ाता है लड़कों को. कई बार टीचर की एबिलिटी को देते ही नहीं मटेरियल, वो अपना पढ़ाता रहता है, वो एक दिन पहले पढ़ता है, बच्चे लड़के एक दिन बाद में पढ़ रहे हैं. इतने ही फर्क रह रहा है टीचिंग लर्निंग में. मगर इनका कहना है कि आप जो पढ़ाने वाले हफ्ते भर में उसका पहले से दे दो, रेफरेंस मटेरियल पहले से दे दो, जितने भी नोट्स है पहले से दे दो, एंड यू आस्क द स्टूडेंट टू कम विद दैट लर्निंग. लड़का जब तक पहले से पढ़ता है उसको पहले दिन बता दो कि मैं कल ये पढ़ाने वाला हूँ, परसों ये पढ़ाने वाला हूँ. ये उनके एक्सपेक्टेशन है कि मैं कल ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और आप पढ़कर आइए इसमें से. उससे फर्क ये होता है कि लड़के ने हमारे से एक दिन पहले पढ़ा है और वो कुछ उसके अंदर पढ़ा, यदि सही में लड़का सिंसियर है तो पढ़कर आएगा, और जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें वो डिफिकल्टी पूछ सकता है. मगर यदि आपको यही नहीं पता कि आज आप क्या पढ़ाने वाले, आपने भी आपके सामने उसने आपने पढ़ाना चालू किया, इमीडिएटली हाउ इज इट पॉसिबल फॉर हिम, तो आपने बोला समझा क्या पढ़ाते हो, समझ. हम पूछते हैं सर डू यू अंडरस्टैंड, मगर इनका कहना है कि आप पहले से बता दो उसको, पूरा लर्निंग मटेरियल दीजिए इन्हें एडवांस में लिखा है एडुकेट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, एंड देन लर्निंग मटेरियल देने के बाद में आप उससे पूछें कि ये आपने इसमें कुछ पढ़कर आया है क्या, एनी डिफिकल्टी है क्या. पढ़ाइए कम, सॉल्व ज्यादा करिए, उनका कहना है. टीच लेस, सॉल्व मोर. उसके लिए आपको ट्यूटोरियल क्लास में ज्यादा पढ़ाइए, ट्यूटोरियल फोकस रखिए क्लास में. दैट इज द आइडियल अप्रोच ऑफ द आउटकम बेस्ड एजुकेशन. ओके, so defined outcome, industry should include case study, unsolved problem and resources in the respective outcome. तो आप इंडस्ट्री को पीपल को बुलाएं, उनकी केस स्टडी सॉल्व करें, उनको इन्वॉल्व करें. जैसे बीच में चालू की भी किया था AICTE ने कि आप 20% सिलेबस इंडस्ट्री वालों से पढ़ाएं, तो वो चाल पर आप उनको रिसोर्स को इन्वॉल्व करिए आपके सिस्टम में. Include educate number of non-practical problem, assignment, matching every course outcome to allow students to test their learning successfully. Industry should participate in at दो. अब ये असाइनमेंट क्यों है? आपका इसमें PO4 और PO3 यदि आप देखते हैं, मैं यहां बताता हूं, एक मिनट. यहां पढ़िए आप PO3 एंड PO4 क्या लिखा है. डिजाइन डेवलपमेंट सॉल्यूशन एंड द कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिसर्च बेस्ड नॉलेज. ये पॉसिबल है कि क्लासरूम में अटेंड होना, एग्जामिनेशन हॉल में. रिसर्च बेस्ड नॉलेज अप्लाई कर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. रिसर्च बेस्ड नॉलेज को अप्लाई करना मतलब आपको लिटरेचर रिव्यू करना है और क्या उस लाइन में क्या यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है उसको अप्लाई कर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है. इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेंड दिस PO4 इन द क्लासरूम, और लोग उसको मैप करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए यू रिक्वायर द असाइनमेंट. आपको असाइनमेंट देना होगा, प्रोजेक्ट देना होगा. तीसरे में देखा डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन. इट इज नॉट पॉसिबल दैट मच टू अटेंड इन द क्लासरूम. उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बेस लेना होगा, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम लेना है तो उसके लिए समय देना होगा. तो फॉर दैट इन द OB इट इज मेंशन दैट यू गिव द असाइनमेंट्स एंड डिफरेंट नॉन ट्राइवल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब आपको प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम दे, केस स्टडीज दे, असाइनमेंट दे. थ्रू दैट यू कैन गेट सॉल्व दैट अटेंड दैट PO. चूज एप्रोप्रिएट चैलेंज बट अचीवेबल स्पेसिफिक कोर्स आउटकम. आपको कोर्स आउटकम चैलेंजिंग भी होना चाहिए
बट अचीवेबल भी होना चाहिए। राइट डाउन द क्लियर एंड मेजरेबल टर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सीओ में जाएंगे तो हम उसको डिटेल में जाएंगे। मेजरेबल टर्म यूजिंग द स्टैंडर्ड एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कहां से आने वाला है? ब्लूम टैक्सोनॉमी से। इसके बाद मैं बताने वाला हूं। ओके, प्रिपेयर स्टडी गाइड, लर्निंग स्टडी विद द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, मेक अवेलेबल अर्ली टू ऑल कंसर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Develop adequate self-assessment material well matched with the course objective to allow students monitor their progress and seek timely help. So these are the important steps if you want to implement the outcome based education. अब इसको से देखिए, जब हम कोर्स आउटकम लिखा तो पहले 2 लाइन में है, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। उसके जो सेंटेंस लिखा अचीवेबल एंड मेजरेबल है। यदि वो मेजर ही नहीं कर सकते तो आपने हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट द सीओ इज गोइंग टू अटेंड। Prepare study guide, learning strategy, available early to all concerned. ये मैंने इस पर ऑलरेडी बताया कि जितने भी कंसर्न उनको पहले से बताइए कि आप किस पे से पढ़ाने वाले, क्या किताबें हैं, किस पे क्या रेफरेंस मटेरियल है। Develop adequate self assessment material. So this is the thing which is mentioned. Reduce lecture hours and increase tutorial hours. इसीलिए यदि आप देखते हैं कि अभी हमारा जो लेक्चर कम है, ट्यूटोरियल ज्यादा हो गया। डिस्कस अनसॉल्व प्रॉब्लम, कंडक्ट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मेटिव इवोल्यूशन? क्या होता है? सब टीचर लोग हैं, सब पता होगा। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट? यूनिट वाइज असेसमेंट। हां, यूनिट वाइज असेसमेंट। याद है? यूनिट वाइज असेसमेंट। यूनिट वाइज, रेगुलर, कंटीन्यूअस असेसमेंट। कंटीन्यूअस असेसमेंट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। Formative assessment is necessary that कि आप जब CA1, CA2, these are all comes the formative, and what is the summative? When you take at the end of the session, so that you can improve the thing. यदि if the students are not understanding, then you can improve the thing if you are conducting the formative assessment. जैसे हमने निकालते हैं what who are the slow learner. CA1 का एग्जाम निकाल लिया, you identify the slow learner 3, 4, 5. उसको ट्रैक किया, CA2 में उसका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं, CA2, CA3 में इंप्रूव हुआ कि नहीं, CA3 के बाद में एंड सेम में। तो इफ यू आर नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैक दैट रिकॉर्ड। आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होना जरूरी है। प्रोवाइड इंडिविजुअल फीडबैक, अलाउ मोर टाइम टू स्टूडेंट टू लर्न। उनको लिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए गिव द टाइम। प्रमोट यूज ऑफ एक्टिव लर्निंग थ्रू सिमुलेशन टूल, virtual lab and also game based learning. For outcome based education आपको simulation tool यूज करें टीचिंग लर्निंग में, virtual lab यूज करें, then game based learning. Design courses to promote collaboration, communication and problem solving. So these are all the things are very clear. तो यूनिट नंबर 1 और 2 में जितना चीज है सब चीज इसमें अंदर आया। इसी बेस पर डिसाइड क्राइटेरिया डिफाइन किया है। जो भी यहाँ पर फैक्टर है, जिन्हें फैकल्टी जिन्होंने यूनिट नंबर 1 और 2 को हैंडल किया है, दे कम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टीचिंग लर्निंग में। कोलैबोरेटिव, ओके, सिमुलेशन टूल, वर्चुअल लैब, गेम बेस्ड लर्निंग। आप लोग कितने लोग, बहुत सारे लोग करते भी होंगे गेम बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड लर्निंग जब मैंने एमबीए किया था, मेरे को आज भी याद है, जब वो जो गेम मेरे को खिलाया था, मेरे को अभी भी याद है। यदि कोई गेम खिलाते हैं ना क्लास में और उसके थ्रू पढ़ाते हैं, कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो वहां हमको बताया था कि वो अपने कागज की नाव बनाते हैं ना, कागज की नाव बचपन में बनाते थे, तो 1 मिनट में कितना कागज का नाव बनाना है। बट उसमें सिर्फ बनाना नहीं, उसके अंदर देखना क्वालिटी कितनी है, कितना अच्छा है, परफेक्ट काम किया है, वो सब फैक्टर आ जाते हैं उसके अंदर। टाइम कौन काम आता है। इस टाइप के छोटे छोटे बहुत सारे गेम हमारे इंजीनियरिंग में है। जो अभी सेशन हम लोग अटेंड किए थे नागपुर में, बहुत सारे फैकल्टी ने सेशन अटेंड कर रहा है, वहां पर भी उन्होंने ऐसे कुछ गेम खिलाए थे। एक बलून दिया था, बलून को फोड़ने का दिया था। खेले थे ना आप लोग, तो बलून में किसका बलून आखिरी तक बचा रहता है, तो सब एक दूसरे का बलून फोड़ने लगे हैं। तो उसने बोला नहीं था बलून दूसरे का फोड़ना है, आपका बचाना बोला था, दूसरे का फोड़ना नहीं बोला था। लोग दूसरे का बलून फोड़ने लगे। ये हम लोग खेल कर आए, दैट इज कॉल्ड द गेम बेस्ड लर्निंग। समझे? मींस कैसा आपको कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करना है, उसमें दे आर ट्राइंग टू गिव द मैसेज। तो नाउ कम टू हियर द ब्लूम टैक्सोनॉमी।
ये कुछ कागज है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी सर ये है, इसको बांट दो, एक मेरे पास है, ये रेफर करिए, देखिए यहाँ पर सबको देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी। These are Bloom taxonomy is very important. The person, the group of the professor, they develop this Bloom taxonomy, and this is used for evaluating your teaching learning process. आपको आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लो ऑर्डर थिंकिंग से हाई ऑर्डर थिंकिंग कैसा लेकर जाना है उसको ये गाइड करता है। यदि आप इसके अंदर पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी में, उसके अंदर में उसके ऊपर डेफिनेशन दी हुई है ब्लूम टैक्सोनॉमी की। रिमेंबर मतलब क्या है? अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवोल्यूट, क्रिएट। पहले लाइन में उसके डेफिनेशन दिया हुआ है और सेकंड लाइन में ऑनवर्ड उसमें उसके कीवर्ड दिया है, दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड आर गिवन द रिकॉल फैक्ट एंड बेस्ड कांसेप्ट। रिमेंबरिंग, यदि आपने फर्स्ट ईयर का जो कोर्स पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में पढ़ा, यदि आप उसको फाइनल ईयर में पूछते हैं कि उसका आंसर आपको बताइए, तो लड़का बोलता मुझे पता नहीं है, बिकॉज दैट आई अंडरस्टैंड, दैट आई लर्न एट द टाइम ऑफ द सेकंड ईयर। वो भी उसने कब पढ़ा? एक दिन पहले, एग्जाम के पहले पढ़ा, रिमेंबर किया, दूसरे दिन एग्जाम में लिख कर आया, तीसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगा, पहला सब्जेक्ट का भूल गया। तो दैट इज कॉल्ड द रिमेंबरिंग। पर आपको अभी पता है कि आपने यदि बचपन में जो आपने साइकिल चलाना सीखा वो अभी भी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना सीखा एक बार तो अभी भी चला रहे हैं, भूलते नहीं है, बार बार चलाते रहते हैं, बिकॉज आपने उसका पूरा अप्लाई किया, नॉलेज अप्लाई कर कर आपने उसको अंडरस्टैंड किया, कैसा चलाना है, क्या करा, उसको अप्लाई किया। मगर यदि आप सिर्फ रिमेंबर करते, जैसे आपने ड्राइविंग स्कूल में गए, इफ यू गो टू ड्राइविंग स्कूल और वहां पर आपने कार चलाना लर्न किया, सीखा, उन्हें टीच किया हाउ टू ड्राइव द कार, आपको पीपीटी लगा दिया, वहां पर सिमुलेटर लगा दिया और आपको बता दिया। मगर यदि हमारा उद्देश्य ड्राइविंग स्कूल में क्या जाना है, हमारा व्हाट इज द पर्पस, कि मैं रोड पर आकर गाड़ी चला सकूं, मैं रोड में कितनी भी गर्दी रहे, भीड़ रहे, दिन में रहे, रात में रहे, मैं कार चला सकूं, मोटरसाइकिल चला सकूं, दैट इज योर पर्पस। आपका ये पर्पस कोई भी नहीं रहता है कि ड्राइविंग स्कूल में जाकर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आ जाऊं। वो रिमेंबर हो गया कि यहाँ पर वहां पर ये साइड का क्या मीनिंग है, ये क्या मीनिंग है, पर उसको आपको अप्लाई जब तक नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो वो आपका लर्निंग फुलफिल नहीं होगा। तो आपको वहां पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 लेवल दिए हुए हैं। बेसिक लेवल रिमेंबर, सेकंड अंडरस्टैंड, थर्ड अप्लाई। अब देखिए आप ये वैसा, और जब आप क्वेश्चन पेपर निकालते हैं तो आप वहां पर लिखते हैं बाजू में मेरा लेवल 1, 2, 3 था। लेवल 1, 2 लिखकर कोई फायदा नहीं है। व्हाई? क्योंकि आपको सीओ के सामने आपने लिखा मेरा सीओ लेवल 1 पर मैंने क्वेश्चन पूछा, मतलब आपने रिमेंबर तो पूछा या अंडरस्टैंड पर पूछा या 3 पर पूछ लिया तो अप्लाई पर पूछा, उससे क्या होगा आपका पीओ को जब आप मैप करेंगे सीओ से, तो आपने बोला मेरा CO1 PO2 या PO3 को मैप है या PO1 को मैप है, आपको मैपिंग करना है ना, और आपने क्वेश्चन में खुद आप लिख रहे हैं, वो वहीं पर पकड़ लेता है, वो आपकी कोर्स फाइल देखता है, वो क्वेश्चन के सामने आजकल हम लोग लेवल लिखवा रहे हैं, GHRD पर आ रहे हैं, पता नहीं, मैं हमारे कॉलेज में लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो दोनों एक ही हो गए हैं, तो अभी सीनियर लेवल पर तो नहीं पता मुझे, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड में लिख रहे हैं आप लोग, तो वहां पर लेवल पर लिखते हैं, वहां पर लेवल 1, 2 लिख रहे हैं और सीओ लिख रहे सामने, और उधर मैपिंग कर रहे 3 से, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू योरसेल्फ। कैसे हो रहा है? PO1 पढ़िए, PO1 में बार बार पढ़ा रहा हूं, PO1 क्या बोल रहा है? अप्लाई द नॉलेज, सिर्फ अप्लाई करना है, नॉलेज को अप्लाई करना है, सिर्फ पढ़कर रखना नहीं है। वहां पर उसका लेवल 3 अप्लाई। तो आपका क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर लेवल 3 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। लेवल 3 से नीचे है इसका मतलब आपने कोई चीज अटेंड ही नहीं हो रही है। अंडरस्टैंड और रिमेंबर तो आपको टीचिंग के लिए है, पढ़ाने के लिए, पर आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए क्या है? वो लड़के ने वो नॉलेज को अप्लाई किया। आपके क्वेश्चन पेपर में लेवल 1 और लेवल 2 लिखना ही नहीं चाहिए। यदि आपने मैपिंग कर रखा है PO1 से भी, CO1 को PO1 से आपने एक भी मैप किया तो आपको लेवल 3 पर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? That's why it is given the, और हम सबको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी एक ही अवेलेबल इन द नेट और सुनते रहते हैं,
अभी भी यहाँ से सुनेंगे, बाद में ये कागज में भी दे रहे, पिछले बार भी मैंने दिया था कागज, उसको नोबडी ओपन दिस, उसे कीवर्ड कोई नहीं देख रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और आप देखिए कीवर्ड पढ़िए और आपके क्वेश्चन पेपर निकालिए, आपको समझ में आएगा कि आपने कितने कीवर्ड पर आपने क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले 2 कीवर्ड पे आपका पूरा खत्म हो जाता है क्वेश्चन पेपर। क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन द थिंग, आइडेंटिफाई द थिंग, डिस्कस, इसी पर रह जाता है। एक आदि जो रहता है मैथमेटिक्स वाला प्रॉब्लम रहता है उसके अंदर में अप्लाई पर होता है। बट एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड क्रिएट यहां तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। उसके लिए पहुंचने के लिए क्लासरूम के क्वेश्चन पेपर से नहीं भी होगा तो आपको कुछ असाइनमेंट से होगा, कुछ प्रोजेक्ट से होगा, कुछ अलग एक्टिविटी से होगा। जरूरी नहीं कि पूरे पीओ आपके क्वेश्चन पेपर से ही अटेंड हो, डिफरेंट इनडायरेक्ट टूल भी आपको अप्लाई करना होगा। तो दैट आर कीवर्ड्स आर गिवन। तो रिमेंबर, तो पढ़िए रिमेंबर में क्या है। पहला रिमेंबर, दैट इज द पहला क्या, रिमेंबर मतलब नॉलेज। किस टाइप का नॉलेज, यदि इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास में, रिकॉल ऑफ डेटा, रिमेंबरिंग द प्रीवियस लर्न मटेरियल, एबिलिटी टू ग्रास्प मीनिंग ऑफ मटेरियल, यूज कॉन्सेप्ट इन ए न्यू सिचुएशन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन में यूज ऑफ कॉन्सेप्ट इन द न्यू सिचुएशन। एनालिसिस में क्या एक्सपेक्टेड है, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मे बी अंडरस्टूड। तो आपको इसको जो भी सिस्टम में दिया उसको सब सिस्टम में करते आना चाहिए एंड देन यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इवोल्यूशन, स्टूडेंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन डेप्थ, रिफ्लेक्शन, क्रिटिसिज्म, असेसमेंट, मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडिया एंड मटेरियल। इवोल्यूशन आप करते हैं कोई भी चीज का, अभी जाते हैं ना कि इवोल्यूशन कर रहे हैं, इवोल्यूशन किया, पेपर चेक किया, पेपर चेक करते तो इवोल्यूशन करने जाते हैं। तो क्या करते हैं आप देखते हैं कि उसके अंदर में प्रॉपर्टी लिखा कि नहीं, आप कुछ रिमार्क डालते हैं, क्रिटिसिज्म आप लिखते हैं ना कि जो प्रॉपर नहीं लिखा है, रिमार्क ये आंसर प्रॉपर नहीं लिखा है तो क्रिटिसिज्म करते हैं। इन डेप्थ रिफ्लेक्शन है कि नहीं, असेसमेंट, मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडिया और मटेरियल, एंड द लास्ट इज क्रिएट मींस डिजाइनिंग, एबिलिटी टू बिल्ड ए स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम द डाइवर्स एलिमेंट, पुट पार्ट टुगेदर टू फॉर्म द होल विद द इंटेंशन क्रिएटिंग ए न्यू मीनिंग और स्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे कि ये डिजाइनिंग तो मैकेनिकल में आ गया, आपके इसमें भी डिजाइनिंग रहता है, कंप्यूटर आईटी में भी बहुत सारा डिजाइनिंग रहता है। अब आजकल तो ऐप डिजाइन हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं, तो वो क्या में आ रहा है, डिजाइनिंग में आ रहा है, क्रिएट में आ रहा है। क्रिएट कर रहे हैं ना, एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, नया बहुत सारे स्टार्टअप इसी पर आते हैं। जब तक आप क्रिएट और डिजाइन पर जाते हैं आपके स्टार्टअप भी चालू होते हैं। अभी अभी मैंने देखा था शार्क टैंक आता है ना, जो अभी बंद हो गया है, जिसके अंदर में स्टार्टअप जितने भी स्टार्टअप है उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बड़े वाले इंडस्ट्री वाले अंदर। उसमें जब मैंने मेरे ख्याल से 10 साल पहले हमने ऐप के अंदर एंड्रॉइड जब नया नया आया था, 6 साल हो गए होंगे, 15-16 की बात थी जब एंड्रॉइड का नया नया था, उसके कोर्स होते थे। उस टाइम पर मैंने आई एम नॉट द कंप्यूटर ब्रांच बैकग्राउंड, पर उस टाइम पर हमने सेशन अटेंड किया था। उस टाइम पर हमने एक ऐप डेवलप कर रहे थे। ऐप डेवलप किया कि व्हाट आर द मेडिकल फाइंडर। आप यदि किसी सिटी में जाते हैं तो आपको दवाखाना नहीं मिलता, डॉक्टर फाइंडर, ऐसा हमने फाइंडर एक ऐप डेवलप किया था। तो उसके अंदर यदि आप किसी सिटी में रिच किए, वो ऐप डाउनलोड कर लिया उस सिटी का, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सिटी में कहाँ कहाँ डॉक्टर लोग हैं। सो दैट अकॉर्डिंग टू द डिसीजेस, स्पेशलाइजेशन एंड उसका फीस एंड उसका टाइमिंग एंड उसका ऑल द थिंग्स आर पुट विद द डॉक्टर डेटाबेस, एंड उससे डॉक्टर का फाइंड कर सकता था वो क्लिक करके, जैसे कि आप लोग ऐप यूज करते हैं। अभी मैंने देखा उसके अंदर एक और बहुत अभी शार्क टाइम में अभी उस टाइम पर देखा, इस टाइप के ऐप पर बहुत सारी और भी चीजें, किसी सिटी में गए आपको तो वहां पर कुछ अलग अलग चीज ढूंढने के लिए उस पर एक स्टार्टअप चालू किया था। दैट इज द थिंग इज द क्रिएट डिजाइन। अब 5-6 साल की वाली पुरानी है, मगर अभी भी उसका उतना इंपॉर्टेंट है आपका। अभी आपके बहुत सारे ऐप, अभी तो आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं कितने ऐप ही बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, तो ऑल आर कमिंग ऑन द क्रिएट डिजाइन। So that is the things are expected. You should inculcate the quality in the student. So knowledge का, यदि knowledge is the big word, इस पे यदि कंफ्यूज होता है, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में लूँगा क्योंकि मुझे CO कवर करना है and I want to finish within the time. So knowledge means define that technical term. कई लोग person they are confused with what is the mean knowledge, what is the remembering of knowledge में क्या चीज आना चाहिए. If you read the thing, define technical term. रेंज मीनिंग ऑफ वर्ड, जैसे आप लोग पूछते हैं डिक्शनरी मीनिंग है, टर्म, कॉन्सेप्ट एंड साइंस, और स्पेसिफिक फैक्ट,
और ट्रेंड एंड सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यदि आपने पूछा दैट इज द नॉलेज, ये ऑलरेडी इसमें पढ़ा हुआ है, ढूंढने का, पढ़ लेगा, लिख देगा। पास मार्क के एग्जाम, मेथड ऑफ इंक्वायरी, रिकॉल ऑफ प्रिंसिपल, व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ, ओके, तो देख राइट रिकॉल द प्रिंसिपल आपने लिख दिया, व्हाट इज द पास्कल लॉ, ये रिकॉल द प्रिंसिपल किया, दैट इज द नॉलेज, जो आपने ऑलरेडी 12वीं तक के पढ़ा हुआ है या इसके पहले तक पढ़ा, उसको ढूंढकर निकाला और लिखा, रिमेंबर करके उसको वापस लिखा, दैट इज नॉलेज, जो आपको याद है, पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे, दैट इज नॉलेज। तो इसके अंदर क्या वर्ड आते हैं? इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन विद द दिस कीवर्ड, अरेंज, डिफाइन, या आपकी इसमें भी कीवर्ड दिए, मैंने उसमें से निकाला है कुछ जो एनपीए वाले ने निकाला अलग से, ये आपको जनरल नेट का कॉपी है, और दीज आर द कीवर्ड व्हिच इज गिवन बाय द एनपीए। तो अरेंज, डिफाइन, डिस्क्राइब, डुप्लीकेट, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, मैच, ओके, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, आउटलाइन, रिलेट, रिकॉल, रिप्रोड्यूस, सिलेक्ट, स्टेट, इस टाइप से हम पूछते हैं क्वेश्चन। ये वर्ड देखिए, पहला वर्ड में अरेंज द थिंग, डिफाइन द थिंग, डिफाइन द, डिस्क्राइब, ओके, आइडेंटिफाई सम कीवर्ड, और ओके, लेबल द डायग्राम। यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ नॉलेज या रिमेम्बरिंग पर ही रुके हुए हैं, लेवल 1 पर रुके हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहते कि इसमें से नहीं पूछना, ये भी पूछना जरूरी है, समझ गए? मगर आपको दूसरी चीज भी सपोर्ट करना चाहिए उस सीओ में, उस सीओ में आपको लेवल 3 की भी चीज होना चाहिए, लेवल 1 की, तब वो टोटल में वो सीओ अटेंड होगा, ठीक है? तो these are the keywords जो आपको इसमें दिए हुए हैं, जो आपको दिया मैंने कॉपी कर, these are keywords are come where there। अंडरस्टैंड दूसरा है, अंडरस्टैंड मीन्स यदि आपको कोई चीज समझ गई है, यू आर एबल टू ट्रांसलेट इन अदर लैंग्वेज इनटू अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकेंगे। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। स्टेट्स इन ओन वर्ड अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यदि आपको कुछ समझ में आ गया तो आप अपने दिल से उसको डिफाइन कर सकते हैं। यदि रिमेंबर है तो एग्जैक्टली वैसी लिखता है ना? जैसे मैंने अभी कल देखते थे व्हाट्सएप देखा था, कॉपी कर रहा था, तो बोलता इसमें लिख रहा है, इसके बाद में कॉमा लगा, बोलता व्हाट इज द डेफिनेशन कॉमा, कॉमा की डेफिनेशन क्या है वो पूछ रहा था। यदि कॉपी कर रहा है, ये सामने वाला बोला कि हाँ ये लिख, इसके बाद में कॉमा लगा, तो पीछे वाला बोला कॉमा की डेफिनेशन बता। ओके, सो दैट इज द, बिकॉज़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कॉमा, स्टेट्स ओन वर्ड, समराइजेशन, जनरलाइजेशन, make the prediction based on the understanding of the trend, consequence, action, describing the, so these are the understanding, you very well understand what you mean by the understanding the things, okay? Then these are the keywords again which is given, आपके पास है, और ये इसमें यदि आप इसमें नहीं होंगे, मुझे मैंने उसमें चेक नहीं किया है, ये जो नेट पे निकाला है ये एनबीए का डॉक्यूमेंट है, मैं उसमें से बता रहा हूँ। क्लासिफाई, कवर, डिफेंड, डिस्क्राइब, some come there also, okay? Distinguish, explain, generalize, give example, locate, recognize, rewrite, review, select. So these are the keywords you have to remember. You have to use this keyword. If you are using this keyword, means you are having the level 2. आप level 2 पर यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इसमें ये वर्ड के साथ यदि आ रहे हैं तो these are called the cognitive level. इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है ब्लूम्स केस पे, cognitive level. वहां लिखना पड़ता है व्हाट इज द कॉग्निटिव लेवल ऑफ दिस ब्लूम, आपके जो सीओ का कॉग्निटिव लेवल निकाला है, तो आपका कॉग्निटिव लेवल क्या आएगा इसका, लेवल 2। इसके अंदर ये वर्ड्स है, these are called the verbs, action verb, okay? These are called the action verbs. Then application, the name is very clear, able to apply principle, concept, method by applying the Newton third law, find out the something. सिर्फ आपने बोला बात सिर्फ न्यूटन पढ़ा रहे हैं, आप कई स्टूडेंट विल लर्न द न्यूटन 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, वो आपका सीओ नहीं होगा। सीओ क्या होगा, बाय अप्लाइंग द न्यूटन फर्स्ट लॉ ही इज एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बाय अप्लाइंग द linear programming he is going to solve the problem of that some real world, by applying the technique, अप्लाई कर कर क्या कर सकता है, मेजरेबल, उसमें एक मेजर वर्ड आना चाहिए, एक्शन वर्ड के साथ में, मेजर कंडीशन के साथ में, and with that conditions, okay? Able to apply principle, concept, method, technique, procedure, theory, and learn
अंडर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी अर्लियर इन द न्यू सिचुएशन। जो उसने लेवल 1 और 2 में जो पढ़ा था उसको नए सिचुएशन में अप्लाई करते आता है तो उसको बोलेंगे अप्लाई। ओके, तो these are the keywords. Again, if you see the keywords, apply, choose, in between that thing, compute. Compute के साथ में calculate word भी आएगा, calculate. Okay, calculate word नहीं है तो calculate आता होगा मतलब compute. Compute इसलिए कि कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व किया तो compute. Otherwise नहीं तो calculate. Okay. Demonstrate, discover, employ, illustrate, interpret, manipulate, modify, operate, practice, prepare, produce, relate, schedule, so scale, solve, use, solve also come under there, use, write. So आप try to ask the question on this. आपको ये वर्ड्स के साथ में बेसिक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करें तो आपका लेवल 3 से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। जो आपका अल्टीमेट एम क्या है आपका सीओ बनाने का, पीओ अटेंड होना चाहिए। सीओ क्यों बना रहे हैं? आपको मैप करना है पीओ से और पीओ को अटेंड करना है। सिर्फ सीओ का कोई मीनिंग नहीं है। सीओ बनाने का मीनिंग है सीओ यदि आपको अटेंड करना है क्योंकि पीओ को करना है तो आपको सीओ कम से कम इस लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। बाय applying, by student will demonstrate, student will illustrate, student will modify, practice or prepare the thing. इस स्टेप से आपके सीओ के अंदर वर्ड्स आना चाहिए। By student will solve, by learning this subject, student will solve क्या कर सकता है आगे, what type of problem, what level you are expecting, okay? और एक सब्जेक्ट के हर लेवल पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पर यदि सेम सब्जेक्ट भी है तो उसके सीओ अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का नाम है तो एक ही सीओ होगा। आप क्या लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लड़के से, वो लेवल का आउटकम उसके अंदर डालिए, एक्शन वर्ड डालिए, उसका मेजरेबल वर्ड डालिए कि ये पढ़ने के बाद में मेरे क्लास का लड़का यहाँ तक पढ़ सकता है, सेकंड ईयर का लड़का थर्ड ईयर में है मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ रहा है उसको, उसके हमने बिकॉज वी वांट टू मेजर द थिंग, वी वांट टू चेक द थिंग। ओके, so this is very important, these are the keywords. Next is the analysis. So I am not going for that in the detail. आपको analysis में word है, if you go calculate, categorize, compare, contrast, criticize, सब वर्ड आप देखेंगे कि इधर उधर भी आए हैं तो बट इसका मीनिंग उस क्वेश्चन के साथ में उसका मीनिंग चेंज होता है। एक्सपेरिमेंट, आइडेंटिफाई, इलिस्ट्रेट, ओके, सिलेक्ट, सेपरेट, सब डिवाइड करना है, कोई भी बिग सिस्टम को छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड करके, एंड टेस्ट, तो ऑल द कम्स अंडर द एनालिसिस। So like these are the some words, check, criticize, detecting, that is evaluate। 5वें नंबर पे जाते हैं, इवोल्यूट करना है तो क्रिटिस करना है, हमको डिटेक्ट करना है, चेक करना है, एक्सपेरिमेंटिंग करना है, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस मेडिकल सभी को पता है, व्हाट इज योर हाइपोथेसिस? दैट इज दैट यू आर अज्यूमिंग समथिंग लाइक द सर ने बताया, इनपुट क्वालिटी नॉट ऑलवेज डिसाइडेड दैट आउटपुट क्वालिटी। इनपुट क्वालिटी अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। आपकी हाइपोथेसिस क्या हो सकती है? If it is not input quality not good, then also you can create the good engineer. Okay, that is your hypothesis. आप उसको contradict करके prove कर देंगे, that is called the hypothesis. यदि आपने बोला कि खराब मटेरियल, जैसे आपने देखा चाइना का मटेरियल, आप बोलते खराब मटेरियल है, but you get the good things, good product. With the bad or the worse material also you get the good type of the good finished product. So the good quality not always cause the good high cost. That is your hypothesis. Good quality with the low cost. That is the hypothesis. आपको ये चीज को प्रूव करना है. That is called hypothesis. Judging, monitoring, testing. So these are the things. Evaluate. These are the keywords. That is the level 5. और जो चीज वहां पर नहीं हो सकती क्लासरूम में, ये इसके लिए आपको दूसरा प्लेटफॉर्म देना होगा बच्चों को। आर्ग्यू है, अप्राइज है, इसलिए कहां पर प्लेटफॉर्म है? क्लासरूम में नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। अप्राइज करना है स्टूडेंट को, तो उसने कॉम्पिटिशन में भाग लिया, उसको मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला। आर्ग्यू कर रहा है मतलब आप उसको डिबेट कॉम्पिटिशन, उसे चेक करें उसका कंक्लूड, कॉन्ट्रेडिक्ट, डिफेंड, डिस्क्राइब, डिस्क्रिमिनेट। So these are all the keywords. If you are using the things, these keywords in your evolution process,
then you are going to achieve the level 5. And the level 6, drawing element from many source, putting them together into new structure. ये उसके अंदर शॉर्ट में मीनिंग लिखा है, यहाँ पर थोड़ा मैं डिटेल में लिखा है यहाँ पर ब्लू स्केच में, जो आपको जो कागज है उसमें छोटा सा लिखा है. प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, क्रिएटिव राइटिंग, दैट कम अंडर क्रिएटिव. क्रिएटिव मतलब डिजाइनिंग नहीं होगा, मॉडलिंग में. क्रिएटिव राइटिंग आल्सो कम अंडर द क्रिएटिव. ओके. एक्सटेम्पोर, टाइम पर कोई भी टॉपिक दे दिया, आपको बोलने को बता दिया तो आपने बोलना चालू कर दिया, दैट इज आल्सो क्रिएटिव. Skill in writing through using the organization of the idea and statement. So this is called the create, and these are the keywords for. And also the producing a plan of proposed set of operation, proposed way of testing hypothesis, integrate result in the investigation into the effective plan for problem solving, design tools to perform specific operation, designing building. So and these are the keywords for the create. Arrange, assemble, कैटेगराइज, कलेक्ट, कंबाइन, कंप्लाई. तो आप इसमें देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अलग अलग क्यूरी रहती है, उसको ज्वाइन कर एक बनाते हैं क्यूरी, उसका सॉल्व कर. यदि आपको निकालना है, सैलरी शीट बनाना है, तो सैलरी शीट में एक शीट से हम अलग से लेते हैं, उसका एम्प्लॉय का डेटाबेस रखा रहेगा, दूसरे में से उसका अकाउंट का डेटाबेस रहता है, कहीं ज्वाइनिंग का रहता है, अलग अलग टाइप से लेते हैं, उसको ज्वाइन कर एक सैलरी शीट बनती है ना. तो यदि आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारी क्यूरी लिखकर एक आपका आउटकम मिलता है. तो दैट इज द असेंबल द थिंग्स. तो यदि आप उस टाइप का काम करवा रहे हैं एग्जाम में, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिएट द थिंग्स. ओके. कलेक्ट, कंबाइन, कंप्लाई, कंपोज. हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि इंजन का पार्ट खोल दिया तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द पार्ट्स रहते हैं. अब जब उसको असेंबल करते हैं तो इंजन बन जाता है. तो दैट इज कॉल्ड द क्रिएट. ओके. कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, डिवाइस, एक्सप्लेन, फॉर्मुलेट, generate, prepare, rearrange, reconstruct, reorganize. So these are the some rewrite. They all comes under the create. So I think this is the you understand what is Bloom's taxonomy and what is important. ये बताने का मतलब क्या है? क्यों बता रहे हैं? What is the outcome of this? ये तो ऑलरेडी है. मैं भी आज पढ़ के बता रहा हूँ. इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है. आपका जब क्वेश्चन पेपर में, आपके टीचिंग लर्निंग में ये लेवल को इम्प्लीमेंट करना है. आपको सोचना है कि मैं ऐसा कैसे करके दे सकूं लड़का हाई लेवल थिंकिंग पर जाए. उसके लिए मैं किस टाइप का प्रोजेक्ट लूं, किस टाइप का असाइनमेंट दूं. असाइनमेंट ये नहीं कि आपने जो 3 टॉपिक पढ़ाए, जो 3 टॉपिक नहीं पढ़ाए तो लड़के बोल दिए घर से घर के लिख कर लेकर आ जाए. दैट इज नॉट द असाइनमेंट. आप उसको सोचने के लिए मजबूर करके असाइनमेंट में कुछ डेटा ढूंढा, कुछ उसका लिटरेचर रिव्यू करा, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आए, तो उसमें उसको सोचना पड़ेगा. उससे आप उससे PO12 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये क्वालिटी इनकलकेट करते हैं. यदि आप उसको लर्निंग के लिए लाइब्रेरी भेजते हैं, लाइब्रेरी जाकर यदि किताब ढूंढकर कुछ निकालता है, तो उसके लिए आप मोटिवेट करेंगे लड़का किताब लाइब्रेरी जाए. सब चीज गूगल से ना मिले उसे. अभी मैंने लास्ट में पर एक NPTEL का कोर्स किया, NPTEL का नहीं, इसका अटल का कोर्स किया था. उसमें एक भी आंसर, जो सर थे IIT कानपुर का था कोर्स, एक भी आंसर गूगल करके नहीं मिलता. एक भी आंसर जो पढ़ाया, जो उन्होंने पढ़ाया उसके सिवा आपको मिलते ही नहीं था. तो गूगल करने से नहीं मिल रहा, आपको पढ़ना है, लर्न करना है, तो आपको अटेंटिव रहना है, आपको देखना है, सर्च बैठना है. नहीं तो पता चला कि यार ये सब चीज तो गूगल करने मिल जाएगा, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं होगा. वो फिर से क्या होगा, लेवल 1 पर रह जाएगा. रिकॉल करेगा सब चीजें जो रखी हुई है, निकालेगा, अप्लाई नहीं करेगा वो चीजें. तो दिस इज द यूज ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू इंप्रूव योर टीचिंग लर्निंग. ओके. So what is the course of? Now we come to our next topic. That is the last topic in our today's talk. Course outcome. इसी के साथ मैं भी बता दूंगा. CO. मेरे ख्याल से आप लोग बोर हो गए होंगे ना? थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक लेते हैं. कितना हो गया? चाय